Uh, I would like to introduce you all with the chamber and its activities before we start the session. So, chamber is an organization which is established in 1926 and is on the verge of completing its 100 years, where the core objective is professional development for all its members, and the members are a mixed bag of advocates as well as chartered accountants and company secretaries. And the vision of chamber is to spread knowledge in the field of fiscal laws and global economy per se. The chamber has contributed to the development of law and profession through its research, papers, analysis, dissemination of knowledge, and all those ways. And chamber also has its chapters at Mumbai and Delhi, and a study group in Pune, Bangalore, and Hyderabad. It also conducts its RRCs for various subjects on direct tax, indirect tax, and FEMA. And the star performer of chamber is the chamber journal, which is a powerhouse of knowledge. And it also conducts a lot of debate competition, essay competition, and various other football, cricket matches for student also. The eminent alumni of chamber are V.H. Patil, D.N. Harish sir, and I'm sure that if you join the organization, you will have a lot of benefits uh, through joining the organization. And yes, I would request Ishita to please take the course of action ahead. Thank you. Thank you, Neha ma'am, for your kind words of wisdom. The power of your subconscious mind is a very interesting session, as it is said that keep your conscious mind busy and we get the best. With this, I request our chairperson, Premal Gandhi, for his opening remarks. Over to you, Premal sir. Thank you, Ashita. You couldn't have summed it much better than what you've done. Obviously, the human mind is one, the conscious, and the other is the subconscious. Obviously, it's a relative term, but it holds more importance today that you see people around where they are able to do such beautiful things just because the power of their subconscious mind. I mean, they think and they can believe that they can do it. And that's when it starts to happen. So, though it's a dark area in the human soul, but where you obviously can't see anything, but it is where there is definite a power, and that power is the reason why people are able to turn dreams into reality. And I'm sure today's speaker, Mahendra ji, he himself is a life coach and a motivational guru, and he will take us through how the subconscious mind works, what is its powers, and obviously how can you wish for something and how will it be true. Obviously, there is facts that your mind is being filled with peace, health, kindness, all this, which is the reason why you're able to achieve what you're able to achieve. And I'm sure we couldn't have found a better speaker who would help us understand or ensure that we generate the supreme power of each of our subconscious mind. As the background of the background page of the speaker himself, when he comes live, or rather when he comes on the spotlight, you will come to know that he's interacted with such gurus or such big eminent people in life. Therefore, it speaks volume about the work that he's been doing. And I'm pretty sure if we are able to take a few percentage of that also from him, all of us will be able to change our dreams into reality. So without any further ado, I will pass it on to you, Ashita, to do the introduction of today's speaker before we hand it back to the speaker. Thank you, Ashita. Thank you, Premal sir. Mahendra Devlekar is an award-winning speaker and an internationally recognized leader in personal development and peak performance strategies. For over 15 years, he has been teaching entrepreneurs, educators, corporate leaders, and people from all walks of life
on how to create the life they desire. As a beloved originator, he has taught lakhs of individuals his modernized formula for success and now certifies trainers to teach his content and methodology all over the world. Mahindra Devlekar has authored countless books and audio and video programs and helped motivate and shape an entire generation of personal development trainers and hundreds of executives from India's top corporation. He has focused on fundamentals of human behavior that most affect personal and business performance. He is the standard to which those who seek to teach and inspire others are compared. He possessed the unique ability to bring extraordinary into ordinary in principles and events, and the combination of his substance and style captures the imagination of those who hear or listen to his words. With this brief introduction, I welcome Mahindra sir to Chamber of Tax Consultants, and over to you, Mahindra sir. The stage is all yours. Thank you so much, Ashwita ji. Thank you so much, and each and everyone. Thank you so much, and great evening, all of you. If you are listen me or if you are heard me, just type hi in the chat box. If I'm audible, please yes. Okay, thank you so much, each and everyone. All right. Okay. Thank you so much. Thank you so much. So just give me seconds. I share my presentation. Okay, so power of your subconscious mind. वैसे पिछले almost 22 years से मैं as a mind expert काम कर रहा हूँ और almost more than 4 लाख से ज्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया हुआ है subconscious mind के ऊपर. और ये जो सेशन है, ये सेशन स्पेशली जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है द चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, दिल से ग्रेटफुल हो, उनके लिए थैंकफुल हो, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म मुझे आप लोगों ने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. सो मेरे पास जो भी समय है उसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से मैं वैल्यू ऐड करूं और मैक्सिमम चीजें मैं डिलीवर करूं. सो मेक श्योर करें कि आप इस सेशन के अंदर नोट्स बनाएं, बिकॉज मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देने वाला हूँ. सो मेक श्योर करें कि आपके पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए जहां पर आप नोट्स निकाल सकते हैं. साथ ही साथ जब चैट बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए जब कहूंगा तब आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज अननेसेसरी चैट का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन जो भी होंगे वो हम एंड में लेंगे, सेशन के एंड में लेंगे क्वेश्चंस. सो मेक श्योर करें कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप जरूर नोट डाउन करके रखें, जिसे एंड में आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज को शुरुआत तो करते हैं आसानी से, मगर एंड तक उसे लेकर नहीं जाते हैं. आपने देखा होगा कि जब हम नया साल शुरू होता है, जैसे अभी जनवरी शुरू हो चुका है, तो फर्स्ट वीक में हम डिसाइड करते हैं कि मैं इतने किलो वजन कम करूंगा, जिम ज्वाइन कर लूंगा, या इतनी किताबें पढ़ूंगा मैं, या ये चीज करूंगा, और उसके लिए हम शुरुआत तो करते हैं. मगर होता यह है कि कुछ दिनों के बाद उस चीजों को हम रोक देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं. और जब कंटिन्यू नहीं करेंगे तो होगा ये कि जो आपने टारगेट सेट किया था, जो गोल डिसाइड किया था, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे. सो हमेशा याद रखिए कि जो मोती होते हैं वो सागर के गहराई में होते हैं, सागर के किनारे पर नहीं होते. ऑलवेज रिमेंबर, राइट. मोती जो होते हैं वो सागर की गहराई में होते हैं, सागर के किनारे पर नहीं होते. तो हमें गहराई में पहुंचना पड़ेगा हमारे माइंड के अंदर, और तब जाके आपको जो चीजें अचीव करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. और इसी के लिए आपको इस सेशन के अंदर आपका 100% इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर देख नहीं सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं मगर मैं आपको देख नहीं सकता हूँ. मगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप 100% फोकस के साथ में और पूरे अटेंशन के साथ में सेशन को अटेंड करेंगे, 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ में अटेंड करेंगे, तब जाके इसका आपको बेनिफिट, इसका फायदा आपको मिल सकता है. सो ऐसा क्यों होता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, मगर ज्यादातर लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं. या फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, मगर ज्यादातर लोग अपने लाइफ में फेलियर होते हैं. या फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग हैं जो अपनी लाइफ में अमीर होते हैं, मगर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में गरीबी की जिंदगी जीते हैं. या फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग अपने लाइफ में हर दिन ग्रो करते जा रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग अपने लाइफ में फॉलोइंग यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनका ग्रोथ जो है वो डाउन होते जा रहा है.
या फिर ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग हैं जो अपने लाइफ में हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, तंदुरुस्त वाली जिंदगी जी रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग आज हेल्थ चैलेंजेस में यानी सफरिंग कर रहे हैं या बीमारी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। या फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो अपनी लाइफ में जीनियस वाली जिंदगी जी रहे हैं और ज्यादातर लोग एक स्टूपिड वाली जिंदगी जी रहे हैं। या फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही लोग हैं जो अपने रिश्ते बहुत अच्छे निभाते हैं या रिश्ते बहुत अच्छे मेंटेन करते हैं, मगर ज्यादातर लोग आज स्ट्रगल कर रहे रिलेशनशिप के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? अगर आप इसमें से कोई भी चीजों के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनके सारे सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। बिकॉज हम सभी लोग जब पैदा हुए थे, जब हम बॉर्न हुए, संसार में आए, सो हम एक मिराकल के रूप में आए, एक मिराकल के रूप में, क्योंकि हमारे अंदर उस ईश्वर ने वो सारी शक्तियां इंस्टॉल करके हमारे अंदर यहाँ पर भेजी हुई है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम वो सारे शक्तियों को जानते नहीं, पहचानते नहीं है और इसी के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपने हनुमान जी के बारे में जाना होगा कि हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, बहुत सारी पावर्स थे, मगर बचपन में उनको श्राप दे दिया था एक साधु ने कि अपने सारे शक्तियों को भूल जाओगे, और जब कोई याद दिलाने वाला होगा आपको, तब वो सारी शक्तियां वापस फिर से दोबारा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जामवंत जी जो थे, जिन्होंने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां है कि आप उड़कर भी जा सकते हैं, और तब जाके हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां मौजूद है, मगर हम जानते नहीं है या शायद हमें किसी ने बताया नहीं है। मगर आज वही जामवंत जी का काम मैं करने वाला हूं आपके लिए, कि आपको ये बताने वाला हूं कि आपके अंदर कितनी सारी पावर्स है, आपके अंदर कितनी सारी शक्तियां है। बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यानी कि सारी शक्तियां जो है वो आप ही के अंदर है, बस आपको अपनी शक्तियों को जानना है, समझना है और अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करना है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है? जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक एक हिरन है, और हिरन जो है, इसको हम अगर हम बात करेंगे कि जब भी कस्तूरी मृग, जिसे हम कहते हैं कस्तूरी मृग, ये कस्तूरी जो होती है वो सुगंध जो होता है वो सुगंध बाहर ढूंढती है, आसपास में ढूंढती है कि सुगंध कहां पर आ रहा है, मगर वो सुगंध उसके नाभि के यहां से ही आ रहा है, उसी के अंदर वो सुगंध है, मगर उस सुगंध को बाहर ढूंढ रही है। वैसे इंसान भी शक्तियां बाहर ढूंढ रहा है, मगर वो सारी शक्तियां उसी के अंदर है, वो सारी काबिलियत उसी के अंदर है, सारा पोटेंशियल उसी के अंदर है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम सारी शक्तियों को, वो सारे पावर्स को बाहर ढूंढ रहे हैं। मगर आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने भीतर जाकर अपने पावर का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ में जो चाहिए वो मनपसंद रिजल्ट्स पा सकते हैं। बिकॉज मैंने भी अपने लाइफ के अंदर, जब मैंने करियर शुरू किया और ये सारी चीजें सीखी, तब मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहला जो मुझे सबसे फेमस किताब, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, जो मैंने किताब पढ़ा और उसके बाद मेरी लाइफ को बदला, और वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का। उस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, और ये सारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अमेजिंग रिजल्ट्स और मैजिकल रिजल्ट्स पा सकते हैं। और यही सारी चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू किया। और अभी लास्ट 1.5 महीने पहले मुझे मास्टर मैनिफेस्टेशन कोच अवार्ड दिया गया भाग्यश्री के द्वारा। एंड साथ ही साथ लास्ट मंथ में मुझे दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक एप्रिसिएशन अवार्ड मिला। सो ये सारी चीजें इसी के लिए हुई, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स, मोर देन 25 से ज्यादा अवार्ड्स मैंने लिए हैं। सो ये इसी के लिए पॉसिबल हुआ बिकॉज मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू किया, नोनली इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको भी मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नोनली इस्तेमाल करके अपने लाइफ में जो भी गोल्स है उसे आप अचीव कर सकते हैं। सो आपका जो माइंड है वो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि आप अगर उसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे लाइफ में मैजिक हो रहा है, मेरे लाइफ में जादू हो रही है। और हमेशा याद रखिए, अगर अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉजिक को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, बिकॉज जहां पर लॉजिक है वहां पर मैजिक नहीं है। अगर आप मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉजिक को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, तभी मैजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इसी के लिए आज हम बात करने वाले हैं माइंड के बारे में। वैसे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज माइंड? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज माइंड? आपके हिसाब से माइंड क्या है? आप मुझे बताइए कि जस्ट चैट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? माइंड क्या है? क्विकली बताइए मुझे, व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? ओके, दिमाग, राजेश जी कह रहे दिमाग। ओके, कलेक्शन ऑफ थॉट्स।
ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर एंड डिसीजन टेकर, ओके, ब्रेन है, अर्चना जी कह रहे ब्रेन, ओके, माइंड इज स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, ओके, ब्रेन है, पावर ऑफ थिंक एंड कम्युनिकेट, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेन और माइंड ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। काफी सारे लोगों को लगता है कि माइंड ही हमारा ब्रेन है और ब्रेन ही हमारा माइंड है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक कॉर्पोरेट में काम सेशन ले रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, और वहां पर ये सब चीजें डिस्कशन हो रही थी। तब एक इंसान वहां पर खड़े हुए और कहते हैं कि सर, हमारा जो ब्रेन है ये हमारा हार्डवेयर है और हमारा जो माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रेन है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसका हम फोटो खींच सकते हैं, उसे हम काट सकते हैं, उसे हम नष्ट कर सकते हैं। मगर क्या आप माइंड को देख सकते हैं, उसे काट सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं या उसे जला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है उसे हम देख सकते हैं मगर सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं, वैसे ही ब्रेन को देख सकते हैं मगर माइंड को देख नहीं सकते हैं। मगर माइंड एक शक्तिशाली टूल हमारे पास यहां पर मौजूद है। वो एक इट्स एनर्जी, माइंड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर हमेशा बहते रहती है। बस उसका हमें इस्तेमाल करना है, उसे यूज करना है। अब उसे कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल किया था वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने मन की शक्ति का 4.5% इस्तेमाल किया था। अब सोचिए, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने 4.5% अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया होगा तो हम कितना करते होंगे? 10%, 50%, 100%, कितना परसेंट आप सभी लोग जानते हैं। और ये क्यों नहीं कर पा रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, सही ज्ञान नहीं, सही नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मगर आज मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे कौन से 10 स्टेप्स है जो 10 स्टेप यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे माइंड जो है ना, वो माइंड के दो डिवीजन किए गए उसके वर्किंग के हिसाब से, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसके पास 5 to 10% पावर है, मगर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास 90 to 95% पावर है। शक्तिशाली है सबकॉन्शियस माइंड, मगर ज्यादातर लोग यहां तक पहुंचते नहीं है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं आइस बर्फ, जो पानी के ऊपर जो बर्फ है वो सिर्फ 5 to 10% है जो हमें दिखाई देता है और हम वही मान लेते हैं। मगर पानी की जो गहराई में जो नीचे बर्फ है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो सबसे ज्यादा होता है, 90 to 95% होता है। उसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा जागृत मन है और सबकॉन्शियस माइंड जो है इसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं, या फिर इसे इनर माइंड कहते हैं, या कॉन्शियस माइंड को हम आउटर माइंड कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। मगर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करते हैं तो उसके कुछ पावर्स है जो यहां पर हम देखते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है इसके पास लिमिटेड पावर है, मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर है। आप जितना चाहे उतने उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसके पास। कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल है, लॉजिकली यानी तर्क शक्ति उसके पास है, लॉजिकली सोचता है। मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं है, वो तो क्रिएटिव है। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि जब बचपन में आपके घर पे अगर कोई बच्चे होंगे तो देखा होगा कि आपने 5-7 साल तक जो बच्चे होते हैं ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उस समय तक 7 साल तक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और जैसे हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं वैसे उसका लॉजिकल माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं कम काम करना शुरू करता है क्योंकि हम ट्रेनिंग दे रहे कॉन्शियस माइंड को। और इसी के लिए लॉजिकल माइंड जो है उसका ज्यादा ट्रेन होता है और वो लॉजिकली सोचना शुरू करता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर से कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। उसके अलावा जो कॉन्शियस माइंड है इसके पास आईक्यू यानी बुद्धि इसका इस्तेमाल करने की शक्ति है, मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास ईक्यू है यानी इमोशनल क्वेश्चन, यानी उनके पास भावनाएं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, एहसास है। कॉन्शियस माइंड जो है वो सोता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, क्योंकि अगर वो सो गया तो हम सो जाएंगे। इसी के लिए आपने देखा होगा कि जब आप
सुबह उठते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है, यानी आपके विचार शुरू हो जाते हैं। मगर जैसे आप रात को सो जाते हैं तो आपके विचार बंद हो जाते हैं, यानी थॉट्स कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास ये पावर है सोचने की, मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने की पावर नहीं है, उसके पास एक्शन लेने की पावर है। और इसी के लिए कॉन्शियस माइंड सोता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। वो 24 घंटे 24 आवर्स वो हमेशा काम करते रहता है। या फिर कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्शंस लेने का काम करता है, मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑटो प्रोसेस करता है। ऑटो प्रोसेस का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मगर अभी तक आप भूल चुके थे कि आपको सांसें लेनी है, ब्रीथ इन और आउट करना है, ये आप भूल चुके थे। मगर ये सांसें जो चल रही है आपकी, ये ऑटोमेटिकली चल रही है, ये ऑटो प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आपके पूरे एंटायर बॉडी का जो कंट्रोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। आप सोचिए कि आप ब्रीदिंग अपने आप नहीं ले रहे, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हो रहा है। और इसी के अलावा रात को सो जाते हैं तो भी आपका ब्रीदिंग चल रहा है, या आपका डाइजेस्ट सिस्टम्स, आपका ब्लड फ्लो, हर एक चीज आप देखिए, आपका इंटायर बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी के लिए वो ऑटो प्रोसेस होता है। एंड कॉन्शियस माइंड जो है वो एक लीडर है, मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फॉलोअर है। जैसे एग्जाम्पल, राम भगवान जो थे वो लीडर थे, मगर हनुमान जी फॉलोअर थे। राम भगवान जो बोलते थे हनुमान जी को, वो हनुमान जी करते थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। वो लॉजिक नहीं लगाते कि क्या कहा या सही है या गलत है, वो लॉजिक नहीं लगाते, बस राम भगवान ने बोल दिया मतलब करना है। तो वैसे कॉन्शियस माइंड ने बोल दिया तो सबकॉन्शियस माइंड को करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो लीडर है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फॉलोअर है उसका। कॉन्शियस माइंड के पास फिल्टर है, मगर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई फिल्टर नहीं है। फिल्टर का मतलब है कि जैसे आप एक कप के अंदर चाय लेते हैं, तो आप चाय लेने से पहले बीच में क्या रखते हैं, छलनी रखते हैं, फिल्टर रखते हैं, जिसे वो क्लीन करके आपको नीचे दे और कचरा जो है वो ऊपर रखे। तो उसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इसके बीच में एक वॉचमैन होता है। ये वॉचमैन क्या काम करता है, ये फिल्टर क्या काम करता है कि कॉन्शियस माइंड में जो विचार आते हैं वो पहले फिल्टर के पास जाते हैं। फिल्टर डिसाइड करता है कि उस विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में जाने देना है या वहां से वापस रिटर्न भेजना है। ये काम करता है आपका फिल्टर। अब ये फिल्टर किसके ऊपर काम करता है, ये आपके बिलीफ के ऊपर काम करता है, आपकी मान्यताओं के ऊपर काम करता है। अगर आपकी बिलीफ पॉजिटिव है तो वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अगर आपकी बिलीफ नेगेटिव है तो उस विचारों को वापस भेज देगा कॉन्शियस माइंड की तरफ। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, यू कैन अर्न 1 करोड़ रुपीज इन मंथ, बट आपका फिल्टर क्या कह रहा है, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है, आज तक नहीं कभी कमाया है। तो क्या होगा, ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, ये विचार फिल्टर वापस रिटर्न भेज देगा कॉन्शियस माइंड के पास, क्योंकि बिलीफ नेगेटिव है। और इसी के लिए जो फिल्टर है, ये कॉन्शियस माइंड के पास फिल्टर है, मगर सबकॉन्शियस माइंड कोई फिल्टर नहीं रखता है। और इसी के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड के पास से कैसे काम निकालना है। और इसी के लिए जब आपके लाइफ में जब ये ट्रेन नहीं करते अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के पास से कैसे काम निकालने के लिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाता है। और ये जो प्रोग्रामिंग है, ये आप जब बच्चे पैदा होने से पहले से ही, यानी कि मदर के कोख में जब होते हैं, तभी से ये प्रोग्रामिंग शुरू होता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये प्रोग्रामिंग अगर नेगेटिव है, अगर प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो उसके इफेक्ट भी नेगेटिव मिलते हैं हमारे लाइफ में। एग्जाम्पल, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, तो आप नैरो थिंकिंग करोगे, लिमिटेड थिंकिंग होगी आपकी, फिक्स माइंडसेट रखोगे आप कोई भी चीज के अंदर। ये सब कुछ पॉसिबल इसी के लिए होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग। एंड प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, फियर होगा आपके अंदर, इनसिक्योरिटी होगी, डाउट होगा कोई भी चीज करने के लिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग नेगेटिव है। या फिर हेल्थ क्राइसिस होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, फेलियर मिलेगा, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मगर तो भी फेलियर मिला, कोशिश करें तो भी फेल हो रहे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव है। या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, करियर प्रेशर हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। ये सारे इशू इसी के लिए आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव प्रोग्रामिंग। मगर सोचिए कि अगर आपने ये प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया,
तो क्या होगा? नो एक्शन, जीरो रिजल्ट। अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी जीरो मिलने वाला है, कोई रिजल्ट बदलाव नहीं आएगा। जैसे चल रहा था वैसे आपकी लाइफ चलती रहेगी या तो और खराब होती जाएगी, क्योंकि आपने अपने लाइफ के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपने प्रोग्रामिंग चेंज नहीं किया हुआ है। और जब आप प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, जब मेरे पास लोग आते हैं 2 दिन के वर्कशॉप में या 3 दिन के वर्कशॉप में, जब ये सब चीजें सीखते हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड का वो रीप्रोग्राम करते हैं, तो उसके बाद देखिए कि आप जब रीप्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले आप अपने गोल्स को बहुत ही आसानी से अचीव करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास में कि बहुत सारे लोग हैं जो गोल तो डिसाइड करते हैं, टारगेट तो सेट करते हैं, मगर उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड को सपोर्ट नहीं करता है। और आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि जो कम मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, बहुत जल्दी गोल को अचीव करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनको सपोर्ट दे रहा है। तो अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम कर लिया, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग किया, तो अपने गोल्स को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये रिश्तों के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। या फिर आपके हेल्थ इश्यूज अगर है तो उसको भी सॉल्व करके आपके हेल्थ को मेंटेन करेगा, यानी बेहतर बनाएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपके अंदर कोई फियर है, कोई प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट्स है, या कोई भी चीज डाउट है, तो ये सब कुछ चीजें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। साथ ही साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड का आप जब रीप्रोग्राम करते हैं तो अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ करना शुरू करते हैं। मेरे पास ऐसे कितने सारे लोग हैं जब ये प्रोग्राम में आते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं, अपने बिजनेस के अंदर 2x 3x 5x 10x करना शुरू कर देते हैं। उनके जॉब के अंदर उनकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे का रीजन एक ही है, बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको साथ दे रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्राम की। एंड साथ ही साथ मनी केस में अगर बात करेंगे, फाइनेंशियल में बात करेंगे, तो आपका फाइनेंशियल लेवल पर भी बदलाव चेंज होना शुरू हो जाएगा, पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम किया हुआ है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको मैं, दीपक कोतवाल एक मेरे पार्टिसिपेंट जो दादर में रहते हैं, ध्रुव हॉल में वो प्रोग्राम अटेंड करने आए थे मेरा। और जब प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उन्होंने मुझे शेयर किया कि सर मेरा एक प्रॉब्लम है, 7 से 8 साल मुझे हो चुके हैं, मैं दोनों नोस्ट्रल से सांस नहीं ले पाता हूं, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है। और मैंने कहा कि उनको ये सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम करके जो टेक्निक्स आपको बताएगी वो टेक्निक को फॉलो करना शुरू करो एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। 3 महीने तक उन्होंने ये सारे सिस्टम को लगातार फॉलो किया, और 3 महीने से पहले ही उनके लाइफ में जो 7 से 8 साल का प्रॉब्लम था, जो दोनों नोस्ट्रल से सांस नहीं ले पाते थे, वो दोनों नोस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दिया। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, वो हार्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नाउ ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उनके दोनों बच्चे आज ये सारी चीजें उन्होंने प्रोग्राम में लेकर आए। आज उनके दोनों बच्चे एक कनाडा में, एक यूएस में हैं, काफी अच्छे सेटल हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करोगे तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, बिजनेस या करियर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। जब लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, उसके बाद जो लोगों को नामुमकिन लगता है वो भी करना शुरू करते हैं। जैसे कि रॉड बेंडिंग, गले की यहाँ पर हम 10 mm की सलिया लगाते हैं और लोग उसे बेंड करते हैं इस तरीके से। या फिर एक स्पून होता है जो चम्मच आप घर पे यूज करते हैं किचन में, आप उसको माइंड के द्वारा रबर की तरह आप उसको बेंड करते हैं ऐसे, इस तरीके से। या साथ ही साथ ग्लास वॉकिंग हो सकता है, खुले पैर कांच के ऊपर चलना हो सकता है, या खुले पैर आग के ऊपर चलना, इसको हम फायर वॉकिंग कहते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल इसी के लिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जाना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। तो आपके लिए जो नामुमकिन लगने वाली चीजें हैं वो भी मुमकिन लगना शुरू हो जाती है। और इसी के लिए whatever woman mind will conceive and believe it can achieve, यानी इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है कि मनुष्य जो सोचता है और जो मानता है वो पाकर ही रहता है। अगर आपके माइंड ने अगर बिलीव कर लिया, कंसीव कर लिया, तो वो 100% आपके लाइफ में होने वाला ही है। क्योंकि कोई भी चीज इस संसार में 2 बार बनती है, सबसे पहले इंसान के माइंड में और उसके बाद बाहर की दुनिया में। इंसान अगर अपने माइंड के अंदर क्रिएट करेगा तब वो बाहर की दुनिया के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। आप अपने आसपास में जो भी चीजें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान के दिमाग में पहले बनी थी, यानी माइंड में क्रिएट हुई थी, और उसके बाद वो बाहर की दुनिया के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया, फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट होना शुरू हो गया। मगर पहले मेंटल वर्ल्ड में क्रिएट हुआ। जैसे कि एरोप्लेन, पहले एरोप्लेन राइट ब्रदर के माइंड में क्रिएट हुआ,
तब जाके वो फिजिकल रूप में बनना शुरू हो गया, और इसी के लिए आज हम इतना जल्दी ट्रैवल कर पा रहे हैं। या फिर अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं, तो रोनाल्ड मैकडोनल्ड, जब उनको एक बार सवाल पूछा गया कि आपने जिंदगी में इतने सफल कैसे हुए, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं था, मैं पूरी तरह से हार चुका था, रोड पर बैठा था, एक बेंच बैठा हुआ था, और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। और जब उस रेस्टोरेंट को मैं देखा सामने बेंच बैठे हुए, तब मेरे मन में मैंने सोचा कि मेरा भी खुद के रेस्टोरेंट की चेन होनी चाहिए। और ये जब मैंने मन में पहली बार देखा उस मैकडोनल्ड को, तब मैं जिंदगी में पहली बार सफल हुआ। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये एक माइंड की बहुत शक्तिशाली टूल है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सो राइट ब्रदर हो या रोनाल्ड मैकडोनल्ड हो, कोई भी इंसान हो जिन्होंने अपने माइंड में पहले क्रिएट किया, तब जाके आज मैकडोनल्ड पूरी दुनिया भर फैला हुआ है। मोर देन 38,000 से ज्यादा उनके रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया भर में। या फिर अगर बात करें धीरूभा अंबानी जी की, धीरूभा अंबानी जी ने कहा था कि थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो, नहीं तो कोई पीछे से आएगा और आपसे आगे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और 90s में उन्होंने कह दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज सचमुच दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। आज सारे काम हम फोन पर करते हैं। थिंक अबाउट इट। सो ये सब कुछ पॉसिबल इसी के लिए हुआ बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन में पहले उस चीज को क्रिएट किया, तब जाके वो बाहर की दुनिया के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया। सो अगर आप अपने जिंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा। जब अपने माइंड में क्रिएट करोगे, तब जाके बाहर की दुनिया के अंदर वो क्रिएट होना शुरू होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रास्ते क्रिएट करना शुरू करेगा। आपने वो एक चीज जानी होगी या एक डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का, अगर कोई चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। यानी कि इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, कि अगर आप कोई भी चीज को दिल से चाहोगे, पूरी शिद्दत से चाहोगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, पूरा नेचर है, ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा। और मे भी आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा इसका, कि आपने कुछ सोचा और कहीं ना कहीं तरीके से वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो गया। ये आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, मगर ये आपने अननोनली एक्सपीरियंस किया है। मगर आप सोचिए कि अगर जान बूझकर अगर आप कोई टेक्निक को फॉलो करोगे, तो कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और इसी के लिए आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर, एक चुंबकीय शक्ति है, एक मैग्नेटिक पावर है। और इस मैग्नेटिक पावर के द्वारा आप बाहर से कोई भी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग यू वांट। आपके लाइफ में जो भी चाहिए उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि शबरी ने राम भगवान को अपने घर पे बुला ही लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि शबरी हमेशा एक ही चीज कहती कि राम भगवान मेरे घर पे आने चाहिए, राम भगवान मेरे घर पे आने चाहिए। वो एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक मैग्नेट बन गया था, और वो मैग्नेट ने उनको उनकी तरफ खींच कर लेकर आए। और ऐसा ही मैग्नेट आपके अंदर है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपके अंदर मैग्नेट है या नहीं है। आर यू रेडी? मैं आपसे कह रहा हूं, आर यू रेडी? ओके, सो अगर आप रेडी है तो अपने दोनों हाथ सामने रख दीजिए इस तरीके से। और जब मैं कहूंगा, अभी नहीं करना आपको, पहले देखो मैं कैसे करता हूं। जब मैं कहूंगा तब दोनों हाथों को टच करना है, जब मैं कहूंगा तब दोनों हाथों को रफ करना है, जब मैं कहूंगा तब अपनी आंखें बंद करनी है, जब मैं कहूंगा तब दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर लेके जाना है, थोड़े से पास लाने हैं, थोड़े दूर, थोड़े पास, थोड़े दूर, थोड़े पास। और एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है कि दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है, उसे महसूस करना है। सो रेडी ऑल ऑफ यू? सभी लोग तैयार है? चलिए अपने दोनों हाथ सामने रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को टच कर लीजिए, और दोनों हाथों को रफ करना शुरू कर दीजिए। क्विकली, फास्ट आप रफ करना शुरू कर दीजिए। जितनी ज्यादा रफ करोगे उतना ज्यादा हीट क्रिएट होगा। वंडरफुल, वंडरफुल, कम ऑन क्विकली। अपने दोनों हाथों को और भी ज्यादा रफ करना शुरू करें। ओके, अब दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर लेके जाइए, थोड़े से पास लाइए, थोड़े दूर, थोड़े पास, थोड़े दूर, थोड़े पास। और एक्सपीरियंस करें कि दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है, उसे महसूस करें, फील करें उसे। कुछ तो होगा, जरूर होगा, एक्सपीरियंस करें। ओके, वंडरफुल, अमेजिंग। सो चैट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कितने लोगों ने मैग्नेटिक का एक्सपीरियंस किया। कम ऑन क्विकली, कितने लोगों ने मैग्नेटिक पावर का एक्सपीरियंस किया? यस, वंडरफुल। मी, यस, मी। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। मैग्नेटिक फीलिंग एक्सपीरियंस, यस, मी। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट, अमेजिंग। जो भी लोग चैट बॉक्स में आके टाइप कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज
आप पैसिव अगर रहोगे तो कोई मजा नहीं आएगा आपको इस प्रोग्राम के अंदर। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, इन्वॉल्व होकर इस प्रोग्राम को अटेंड करोगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो सारी बातों को आपके अंदर उतारेगा, और इसी के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। सो ये मैग्नेटिक पावर आपके अंदर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि आपके अंदर ये मैग्नेटिक पावर है। इस मैग्नेटिक पावर के द्वारा आप नेम, फेम, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो भी चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप उसे आकर्षित कर सकते हैं, बस उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसी के लिए आप जब कोई भी चीज सोचते हैं तो ईश्वर जो है ना, भगवान, उसे ऊपर से एक ही चीज कहता है और वो है तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, सो बी इट, आमीन। आप जो भी कहे, आप जब भी कुछ भी सोचते हैं ऊपर से तथास्तु होता है। जैसे कि ये भाई साहब सोच रहे कि मेरा भविष्य उज्जवल है, भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इनका भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। मगर जैसे कि ये भाई साहब सोच रहे कि मेरा भविष्य अंधकार में है, प्रॉब्लम में है, तो भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए। इनका भविष्य कैसा होगा? अंधकार में होगा। अब जैसे कि ये बहन सोच रही कि मेरा जीवन सुंदर है, भगवान कहेंगे तथास्तु, इनका जीवन सुंदर होगा। मगर ये बहन सोच रही है कि मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए। और 10 पड़ोसी की प्रॉब्लम्स लाके देंगे, ले भाई संभाल। ये सुनो, इसका मतलब क्या है कि आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं और आप जो बोलते हैं, उसके ऊपर भगवान क्या करते हैं? तथास्तु करते हैं। तो आज के बाद एक चीज हमेशा याद रखिए कि आज के बाद आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है और पॉजिटिव बोलना है। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना नेगेटिव फील करेंगे, जितना नेगेटिव बातें करेंगे, उतना आपकी लाइफ भी नेगेटिव होती चली जाएगी। इसी के लिए आज गरीब इंसान गरीब बनते जा रहा है, अमीर इंसान अमीर बनते जा रहा है, सुखी इंसान और भी सुखी होते जा रहा है, एक दुखी इंसान और भी दुखी होते जा रहा है, एक हेल्दी इंसान और भी हेल्दी बनते जा रहा है, एक बीमार इंसान और भी ज्यादा बीमार होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान जो सोचता है उसके ऊपर भगवान तथास्तु करते हैं। तो ये कंफर्म कर लीजिए, आज अपने आप से वादा कर लीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव कभी फील नहीं करेंगे, नेगेटिव कभी बोलेंगे नहीं, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव में रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव होती जाएगी। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आप नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना है या नेगेटिव थिंकिंग को कम करना है? क्योंकि आज मोर देन 60,000 थॉट्स, 60,000 से ज्यादा विचार हमें पूरे दिन भर में आते हैं। एक दिन में 60,000 थॉट्स हमें आते हैं। अब तो सोचिए कि 60,000 थॉट्स में 95% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और रिपीटेड होते हैं। अब आप सोचिए कि 95% थॉट्स अगर नेगेटिव है तो हमारी लाइफ कैसे बनेगी? एब्सोल्युटली नेगेटिव बनेगी। तो ये थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग एक टेक्निक देने जा रहा हूं। कितने लोग रेडी है? अगर आप रेडी है टेक्निक सीखने के लिए तो चैट बॉक्स में टाइप करिए आई एम रेडी। चैट बॉक्स में टाइप करिए आई एम रेडी। अगर आप रेडी है इस टेक्निक को सीखने के लिए तो टाइप करिए आई एम रेडी या रेडी। ओके, वंडरफुल। आई एम रेडी, आई एम रेडी, रेडी, रेडी। ओके, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। जो भी लोग चैट बॉक्स में जा रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट कि आप एक्टिवली इस प्रोग्राम के अंदर आप इन्वॉल्व है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक देने जा रहा हूं जो मेरी लाइफ में मैंने फॉलो की, मेरी लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आज मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। और ये जो टेक्निक है जो आपके थॉट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करेगी, एंड उस टेक्निक का नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड रबर बैंड टेक्निक। रबर बैंड टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड के अंदर रबर बैंड पहनना है। रबर बैंड थोड़ा सा लूज होना चाहिए रबर, और वो रबर जो है रबर बैंड आपके लेफ्ट हैंड में रखना है और ये 21 डेज के लिए रखना है, 21 दिन के लिए रखना है। आपको बिल्कुल भी निकालना नहीं है। अगर टूट जाएगा तो दूसरा रबर बैंड पहनना है, मगर 21 दिन तक ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि 21 दिन तक मैं इस रबर बैंड टेक्निक को फॉलो करूंगा या करूंगी। और 21 डेज आपको ये रबर बैंड टेक्निक को फॉलो करना है। बिलीव मी, 10-12 दिनों के अंदर ही आपको मैजिक दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या है, ये रबर बैंड जो है जो आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में, जब भी आपको नेगेटिव विचार आएगा
आप नेगेटिव फील करोगे। आप जब किसी को नेगेटिव बोलते हैं तो रबर बैंड को खींचना है और छोड़ना है। क्या करना है? रबर बैंड को खींचना है और छोड़ना है। जैसे रबर बैंड को खींचोगे और छोड़ोगे तो यहां पर दर्द होगा, और जैसे यहां पर दर्द होगा तो आपके ब्रेन के पास, माइंड के पास एक मैसेज जाएगा कि भाई पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच। तो शुरुआत में क्या होगा? मे बी 100 बार, 150 बार, 200 बार भी, 250 बार भी पूरे दिन भर में ऐसा होगा कि आप रबर बैंड को खींचोगे छोड़ोगे, रबर बैंड को खींचोगे छोड़ोगे। आप जितना अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहोगे, इंटीग्रिटी के साथ करोगे टेक्निक को, उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, राइट? सो ये रबर बैंड टेक्निक को आपको 21 दिन तक फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, विश्वास रखिए, 10-12 दिनों के अंदर ही आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और आपका पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कितने लोग कमिट करते हैं मुझे कि आप ये 21 दिन तक फॉलो करेंगे? कितने लोग कमिट करते हैं? अगर आप कमिट करते हो टाइप करें आई, टाइप करें आई। ओके, आई 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 आई। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो फायदा आपका ही है, बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और लाखों मेरे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट लिया हुआ है, फायदा लिया हुआ है, आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ, जैसे मैं बात कर रहा हूं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत सारी पावर्स है। 95% पावर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपका प्रोग्रामेबल चिप है। ये प्रोग्रामेबल चिप है। आप उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो पुराना प्रोग्रामिंग है उसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा प्रोग्रामिंग हुआ है ये ऑटो प्रोग्रामिंग हुआ है। ऑटो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? कि हमारे पेरेंट्स ने, या मे बी हमारी सोसाइटी ने, या इस तरीके से फैमिली मेंबर्स हो सकता है, स्कूल्स, कॉलेज, फ्रेंड्स, सोसाइटी, रिलीजियस, है ना, कंट्री, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज, सोशल मीडिया, इन सारे लोगों ने हमारे अंदर क्या किया है? एक प्रोग्रामिंग क्रिएट किया हुआ है। और ये जो प्रोग्रामिंग है ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्रिएट हुआ है। हमें जैसा चाहिए वैसा प्रोग्रामिंग नहीं है, वो जैसा चाहते हैं वैसा प्रोग्रामिंग क्रिएट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद का प्रोग्रामिंग खुद क्रिएट करें और जैसे चाहे वैसे क्रिएट करें। मैं भी जब ये नहीं जानता था सारी चीजें, तब मेरे पेरेंट्स ने या मेरे परिवार ने, मेरे आसपास के लोगों ने, समाज ने मेरा भी प्रोग्रामिंग कर दिया था। मगर जब मैंने जाना, समझा, सीखा, तो मैंने अपना पुराना प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया, रीप्रोग्राम कर दिया, और मुझे जो प्रोग्रामिंग चाहिए था वो मैंने प्रोग्रामिंग क्रिएट किया, और उसके बाद वो प्रोग्रामिंग रन होना शुरू हो गया। और इसीलिए मैं भी आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप अपना खुद का प्रोग्रामिंग खुद क्रिएट करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ कैसे जीना है, ये आप जानते हैं, और इसी के लिए आपका प्रोग्रामिंग आपको करना जरूरी है। और जब आप प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ जो है ना वो काम करता है। तो दो प्रकार के बिलीफ होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बिलीफ, एक है एम्पावरिंग बिलीफ और दूसरा होता है डिस एम्पावरिंग बिलीफ। एम्पावरिंग बिलीफ का मतलब होता है कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, राइट? और डिस एम्पावरिंग बिलीफ का मतलब है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब डिस एम्पावरिंग बिलीफ है। और सोचिए कि आज आपके अंदर कितनी सारी डिस एम्पावरिंग बिलीफ है, और ये सारे जो डिस एम्पावरिंग बिलीफ है ना, ये आपको और भी नीचे की तरफ लेकर जा रही है। मगर आपके अंदर अगर एम्पावरिंग बिलीफ होगी तो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, और इसी के लिए आपके अंदर एम्पावरिंग वाले बिलीफ को इंस्टॉल करना जरूरी है। और जब आपके अंदर ये नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, नकारात्मक मान्यता होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, तो उसका रिजल्ट्स क्या होता है आपको पता है? जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीफ होती है, थोड़ा फोकस देकर देखिएगा, बिकॉज ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट है, उसे समझना। बिकॉज जब भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिलीफ होती है, तो आप क्रिएट करते हैं नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा ही है, सब कुछ एनर्जी है, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आप नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, और जब आप नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को। और आप बार बार कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे ही नेगेटिव लोग क्यों मिलते हैं, मेरी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है। ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है आपकी वजह से, किसी और की वजह से नहीं है, क्योंकि आपने ही इसे अट्रैक्ट किया हुआ है। और जब नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, तो अट्रैक्ट क्या होगी? पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बैड लक या फेलियर, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है, क्योंकि यही सारी फीडिंग्स है, यही सारी चीजें।
मगर आप सोचिए कि थोड़ा सा चेंज अगर हम लेकर आएंगे अपने थॉट्स के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर, अपने बिलीफ के अंदर, अगर नेगेटिव की जगह पर अगर हम पॉजिटिव थॉट्स करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस लाएंगे, पॉजिटिव बिलीफ रखेंगे, एम्पावरिंग वाले बिलीफ रखेंगे, तो क्या होगा? क्रिएट होगी पॉजिटिव एनर्जी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी तो अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए जरूरी सिचुएशन है, आपके लिए सुटेबल सिचुएशन है, आपके लिए प्रोग्रेस के लिए सुटेबल सिचुएशन है, वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एंड जिस वजह से आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में एक अच्छा लक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें पॉसिबल कब है? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करोगे, पॉजिटिव बिलीफ रखोगे, एम्पावरिंग वाले बिलीफ रखोगे, तब ये साइकिल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मगर नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव इमोशंस रखोगे, नेगेटिव बिलीफ रखोगे, तो ये साइकिल आपके लिए नेगेटिव काम करना शुरू करेगा। कितने लोगों को लगता है कि बल्ब ऑन मोमेंट, कितने लोगों को लगता है बल्ब ऑन मोमेंट, बल्ब ऑन मोमेंट, कितने लोगों को लगता है कि ये जो आपने जाना अभी समझा है कि अगर आपने अपने लाइफ में अगर इसे फॉलो किया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से 360 डिग्री पर चेंज हो सकती है? तो कितने लोगों को लगता है ये बल्ब ऑन मोमेंट है? ओके, मी, यस, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अगर आपको लगता है कि ये बल्ब ऑन मोमेंट है आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा रियलाइज करने की जरूरत है अपनी लाइफ के बारे में, और अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप रेडी नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, तब तक आपके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज इस संसार में आपके सिवा दूसरा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको बदल सकता है, आपको चेंज कर सकता है, या आपके लाइफ को बदल सकता है। आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, राइट? सो क्रिएट एन एम्पावरिंग बिलीफ। आई कांट डू इट की जगह पर आई कैन डू इट आपको कहना जरूरी है। आई कैन डू इट, यस, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जब आपके अंदर इंपावरिंग वाली बिलीफ होगी तो आप नामुमकिन को ही मुमकिन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे एक पार्टिसिपेंट्स जागृति जी, जो नासिक से है, जिन्होंने 28 साल कभी हंसी नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही जब पैदा हुई थी तभी उनको हेल्थ चैलेंजेस लेकर ही पैदा हुई थी, व्हीलचेयर के ऊपर थी। उनके पेरेंट्स ने जब इस प्रोग्राम में लेकर आए और जब प्रोग्राम अटेंड किया, और जब उनकी नेगेटिव बिलीफ थी वो पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट हुआ। जो पहले होता था कि यार मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं खुद के दम पर काम नहीं कर सकती हूँ, या चल नहीं सकती हुई, जो बिलीफ था ये टूट गया, और ये बिलीफ इंस्टॉल हो गया कि आई कैन डू इट, मैं खुद चल सकती हूँ, मैं खुद वॉक कर सकती हूँ, रन कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। ये ऐसा बिलीफ उनके अंदर आ गया। और जब उनका बिलीफ ये बिल्ड हो गया और उसके बाद उन्होंने खुद चलना शुरू किया, चलते चलते गिरती थी, फिर वो खड़ी होती थी, फिर गिरती थी, फिर खड़ी होती थी, फिर गिरती थी, फिर खड़ा होती थी। इस तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी, बस वो लगातार अपने आप से लड़ती रही, इंपावरिंग बिलीफ को इंस्टॉल करती रही कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और ऐसे करते करते वो चलना शुरू हो गई खुद के पैरों पर, यानी कि किसी के सपोर्ट के बिना वो चलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो लड़की 28 साल तक हंसी नहीं थी, कभी अपने दम पर अपने पैरों पर चली नहीं थी, वो दुबई में जाके स्काई डाइविंग किया। उसके बाद उन्हें बंची जंपिंग से लेकर कितने सारे एडवेंचर किए उसने, कि आप एक साधारण इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो नहीं कर सकता एक्टिविटीज, वो सारे एक्टिविटीज इस लड़की ने किए। इतना ही नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं अपने परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, फाइनेंशियली खुद में कमाना चाहती हूँ, और इसी के लिए उन्होंने हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। एंड उसके बाद शी बिकम अ ट्रेनर, एंड उसके बाद आज वो लोगों को सिखा रही है कि कैसे जिंदगी जीना है, और लाखों रुपए महीने का कमा रही है। यानी ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज उन्होंने अपने अंदर के जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ थे उसको ब्रेक कर दिया, और उन्होंने अपने अंदर एम्पावरिंग वाले बिलीफ को इंस्टॉल कर दिया। और ऐसे हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, जो पैरालिसिस से लेकर बाहर आ चुके हैं या कैंसर से बाहर आ चुके हैं। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिलीफ। तो आपकी बिलीफ ही है जो आपके लिए काम करती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर डिसएम्पावरिंग बिलीफ होगी तो नेगेटिव तरीके से काम करेगी, अगर एम्पावरिंग वाली बिलीफ होगी तो पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। और इसी के लिए अब मैं आपको यहां पर ऐसे 10 साइंटिफिक और पावरफुल प्रैक्टिकल स्टेप देने जा रहा हूं, जहां पर आपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं।
सो अभी आपका पूरा फोकस मेरी ओर ज्यादा रखिए, बिकॉज अभी मैं आपको प्रैक्टिकली 10 स्टेप देने जा रहा हूं, जो 10 स्टेप्स फॉलो करने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और आपके मनपसंद रिजल्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो आर यू रेडी? कितने लोग जानने के लिए तैयार है? वो 10 स्टेप्स जानने के लिए तैयार है? अगर आप रेडी है तो टाइप करें रेडी। अगर वो 10 स्टेप्स जानने के लिए तैयार है सो टाइप करें रेडी। रेडी 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 रेडी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जो भी लोग टाइप कर रहे रेडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट। सो अगर आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूं आपको वो 10 साइंटिफिक स्टेप देने के लिए, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मगर मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसको फटाफट कवर करूं ये 10 स्टेप्स को। सो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेट अ बिग एंड पॉजिटिव गोल। सबसे पहले याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास 95% पावर है, मगर ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसको गोल चाहिए, उसको कुछ काम चाहिए। अगर उसके पास कोई गोल नहीं होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। मगर उससे अच्छा है कि हम उसको काम दे, हम उसको एक डायरेक्शन दे कि भाई तुम इस डायरेक्शन पर काम करो। और इसी के लिए आपकी लाइफ में एक बड़ा और पॉजिटिव गोल होना बहुत जरूरी है। सेट अ बिग एंड पॉजिटिव गोल। वैसे भी 2024 अब शुरू हो चुका है। अब ये जो शुरू हो चुका है नया साल, जनवरी का मंथ अब शुरू है। जैसे हमारा लास्ट संडे, परसों ही हमारा लक्ष्य 2024 का प्रोग्राम था, जिसमें हमने पूरे साल भर का हम प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के देते लोगों को कि पूरे साल भर आप कैसे बेहतर अपने साल को बना सकते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने लाइफ में एक बड़ा सा गोल सेट करें, पॉजिटिव गोल सेट करें अपने लाइफ के लिए, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसके लिए काम करना शुरू करेगा। एक मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर जब करियर शुरू किया था 1999 2000 में, तब मैंने भी सोचा था कि मुझे भी एक इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, मुझे भी एक ऐसा की नोट स्पीकर बनना है। और तब जाके मैंने करियर शुरू किया। पहले शुरुआत में डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आए, मगर लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया और आज हजारों लोग प्रोग्राम में रहते हैं और मोर देन 4 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन कर चुके हम। एंड साथ ही साथ मोर देन 120 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट के अंदर हम काम कर चुके हैं। ये सब कुछ इसी के लिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में गोल सेट किया था। और जब गोल सेट करेंगे तो ये सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। उसके बाद मैंने पर्सनल मैग्नेटिज्म किताब लिखा 2015 में, उसको लॉन्च किया। उसके बाद 2016 में पैसों का रहस्य सीक्रेट ऑफ मनी को लॉन्च किया। अब पर्सनल मैग्नेटिज्म का सेकंड वर्जन अभी हमने लॉन्च किया। उसके अलावा बिग मनी। एंड साथ ही साथ आप में से कुछ लोग होंगे जो ब्रायन ट्रेसी जी को जानते होंगे, जो हमारी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं। उनके साथ मैंने बुक ऑथर किया, को ऑथर किया बुक। एंड वो जो बुक है वो लॉन्च किया सुनील शेट्टी जी के द्वारा, हमने इस बुक को लॉन्च किया था। सो कहने का मतलब ये कि जब आप गोल सेट करते हैं तो आपके गोल पूरे भी होते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। नागपुर, लुबना, जब वो प्रोग्राम में आए थे तब 10 स्टैंडर्ड में थे। और जब 10 स्टैंडर्ड में थी तभी उन्होंने डिसाइड किया था, ये सब कुछ चीजें जानकर सीख कर डिसाइड किया था कि मैं 10 स्टैंडर्ड के एग्जाम में 95% लाना चाहती हूँ। और उन्होंने सारे सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, वैसे एक्शंस लेने शुरू किए। एंड जब रिजल्ट्स आया तो ऑलमोस्ट 98%, 97 समथिंग कुछ परसेंटेज, मतलब ऑलमोस्ट 98% के करीबन उनको रिजल्ट्स आया। वहां तक उन्होंने रुके नहीं। उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे से स्टूडेंट्स वहां तक लेकर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने किताब लिखने का डिसाइड किया, गोल सेट किया कि किताब लिखने का। उन्होंने किताब लिखना शुरू किया और उसके बाद वो पब्लिश हुआ किताब स्टेपिंग स्टोन के नाम से। और ये जो स्टेपिंग स्टोन का नाम का जो किताब है, ये प्रतिभा पाटिल से लेके रतन टाटा से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों तक ये पहुंचा और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया इस किताब के लिए। यानी सोचिए, अगर लुबना ये 10 साल की लड़की, अगर 16 साल की लड़की अगर गोल सेट करके अगर उसे अचीव कर सकती है, तो मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपने लाइफ में गोल सेट करके उसे अचीव कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, बस आपको भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूँ, पॉसिबल है। राइट। सो कितने लोगों को भरोसा हो रहा है कि यार आप भी ऐसी चीजें कर सकते हैं? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है? अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो टाइप करें सी, टाइप करें सी, टाइप करें सी। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं तो आज ही अपनी जिंदगी के अंदर, आज ही आपकी जिंदगी के अंदर इस प्रोग्राम के बाद अपने गोल्स को लिखना शुरू करें, गोल्स को लिखना शुरू करें। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट अ बिग एंड पॉजिटिव गोल्स। आज आपको इस सेशन के बाद बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं, बड़े गोल डिसाइड करने हैं, पॉजिटिव गोल डिसाइड करने हैं।
और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, एक्शन प्लान बनाना है और उसके लिए एक्शन लेना शुरू करना है, जिसके लिए मैं आपको टेक्निक दूंगा अभी कि किस तरीके से इन सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, दैट इज सेट अ बिग एंड पॉजिटिव गोल्स। नाउ सेकेंड स्टेप है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और वो है बर्निंग डिजायर एंड लव। आप जानते हैं कि कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकल है, मगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर EQ है, इमोशनल क्वेश्चंस, यानी कि इमोशनल है वो, और इसी के लिए प्यार, लव, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और इसी के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि यार ये मुझे हासिल करना ही है, ये जो गोल है ना ये मुझे अचीव करना ही है, यहां तक मुझे पहुंचना ही है, ये मुझे करना मतलब करना ही है, दैट्स इट। अगर आपका टारगेट है कि आपको इतना पैसा कमाना है तो उतना पैसा कमाना ही है, आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना करना है तो इतना करना ही है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं तो लाने ही है। यानी जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी आपका हेल्थ के प्रति गोल हो सकता है, फाइनेंस के प्रति गोल हो सकता है, करियर या बिजनेस के प्रति गोल हो सकता है, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, वो आग होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि यार बस करना ही है, रुकना नहीं है। जब तक हम उसे अचीव नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, वो पैशन और एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर होगा, वो प्यार होगा उस गोल के प्रति, लव होगा, वो पॉजिटिव इमोशंस होगा, तो नेचर भी आपको साथ देना शुरू करेगा, वो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको साथ देना शुरू करेगा। और इसी के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर एंड लव। ये बर्निंग डिजायर कैसे आ सकती है आपके अंदर? इसके लिए आपने जो गोल लिखे ना, उसमें पहले आपको फाइंड योर वाई, आपको वाई ढूंढना पड़ेगा। ये गोल मुझे अचीव क्यों करना है, इतने पैसे मुझे क्यों कमाने हैं, मेरे कंपनी का इतना टर्नओवर क्यों करना है, मुझे इतने कस्टमर तक क्यों पहुंचना है, ये आपको वाई ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जिसका जितना बड़ा वाई होता है उतना बड़ा सफलता भी उसको मिलती है, उतनी भी सफलता उसको मिलती है, क्योंकि उसका वाई उतना बड़ा है। सो आपकी लाइफ में आपका वाई भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, उतना पावरफुल होना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई कारण नहीं होगा आपकी लाइफ में उसे अचीव करने के लिए, तब तक आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके लिए कारण चाहिए, एक कोई ना कोई रीजन चाहिए उसके लिए। और जब रीजन मिलता है तो हमारी स्पीड जो है ना वो बढ़ जाती है। और इसी के लिए आपको गोल को अचीव करने का जो वाई है, वो वाई ढूंढ निकालो कि क्यों आपको अचीव करना है, क्या रीजन है उसके पीछे। और जब आपने गोल सेट किया, आपका वाई ढूंढ लिया, आपने बर्निंग डिजायर क्रिएट किया, आपके अंदर लव क्रिएट किया, फिर थर्ड स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड यूज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। हमारे मन की 4 अवस्था होती है, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। ये जो 4 अवस्था, इसमें से जो पावरफुल अवस्था है वो है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। जैसे आपने ECG मशीन देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, जिसमें हमारे हार्ट बीट्स चेक किए जाते हैं, है ना, अप एंड डाउन होते हैं। उस तरीके से हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए EEG मशीन होता है, जहां पर हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी हम चेक कर सकते हैं। तो जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड पर होती है। और जब कोई भी इंसान अपने मन की फ्रीक्वेंसी को 7 to 14 साइकिल पर सेकेंड पर लेकर आता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। वो कोई भी चीज को जल्दी रिसीव करता है और मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। और इसी के लिए ये जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये दिन में हम 2 बार नेचुरली आते हैं। आपको पता है कब आते हैं? जरा चैट बॉक्स में आके मुझे बताइए, हम नेचुरली कब आते हैं? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में दिन में 2 बार नेचुरली हम कब आते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कब आते हैं हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, कब आते हैं? यस, व्हेन वी वेक अप, एब्सोल्युटली। हम जब सुबह उठते हैं तो पहली बार जब सुबह उठते हैं तब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और एब्सोल्युटली सोने से पहले 5 मिनट जो होते हैं वहां पर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। यानी सुबह उठने के बाद पहले 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट, ये जो 5 मिनट्स है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है। और इस समय में अगर आपने अपने गोल्स को विजुअलाइज किया, उसकी कल्पना की, आपने कोई भी चीज अच्छी रीड की, या आपने अच्छी बातें सुनी, या आपने अफर्मेशन दिया अपने आप को, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ लेगा। मगर ज्यादातर समय पर क्या देखा जाता है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर हाथ में लेते हैं, या वो न्यूज पढ़ते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज पढ़ते रहते हैं, और वो नेगेटिव बातें सुनते रहते हैं। अब आप सोचिए कि वो नेगेटिव चीजें अगर आपने सुबह उठते समय आपने अगर सुनी, तो आपका पूरा दिन कैसे जाएगा? नेगेटिव जाएगा। और रात को सोने से पहले अगर आपने वो हॉरर मूवीज देखी, या हॉरर सीरियल देखी, या फिर नेगेटिव सीरियल्स देखी, तो क्या होगा? आप सोने से पहले आप नेगेटिव इनपुट दे रहे, तो पूरी रात भर आपका प्रोग्रामिंग कैसे होगा? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव होगा। और इसी के लिए हमारे दादा या दादी पुराने जमाने में क्या करते थे,
हमें अच्छी कहानियां सुनाते थे सोने से पहले, अच्छी कहानियां सुनाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सोने से पहले जो भी चीज सुनता है वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करता है। और जब हम सुबह उठते थे तो हमारे घर पर भजन लगते थे, है ना? क्यों भजन लगते थे? क्योंकि हम सुबह सुबह उठते समय अगर भजन सुनकर या अच्छी बातें सुनकर अगर उठेंगे तो हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा। और इसी के लिए आपको ये 2 समय का यूटिलाइज जो है वो पॉजिटिव तरीके से करना है। सुबह उठने के बाद पहले 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने गोल्स को रीड करो, उसे विजुअलाइज करो, उसे फील करो कि आपने उसे पा लिया है, और पॉजिटिव अफर्मेशन देकर या मेडिटेशन करके आप सो सकते हैं। अगर ये चीजें आपने कर ली, शुरू कर दी, तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करना शुरू करेगा पॉजिटिव तरीके से। सो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ये तीसरा और पावरफुल टेक्निक है जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेडिटेशन एक तरीका है जहां पर आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। राइट? सो मेरी डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन है जो आप करना चाहेंगे तो महेंद्र देवलेकर ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन उसमें दिए गए हैं, आप जरूर उसको यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं खुद हिमालय जाके मेडिटेशन कर चुका हूँ, अलग अलग आश्रम में रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट संतों के साथ रहा हूँ, और कई साल मैं इस जर्नी को अपनी लाइफ में फॉलो किया हूँ, मेडिटेशन की जर्नी को, और अभी भी मैं कंटिन्यू करते रहता हूँ। और अभी भी हमारा इनर जर्नी प्रोग्राम है 26, 27, 28 को, जहां पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं लोगों को किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन के गहराई में तक कैसे पहुंचना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। आपने ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर भी जाके हम प्रोग्राम लेते हैं, माउंट आबू में प्रोग्राम लेता था, अभी बोरली सेंटर में प्रोग्राम होते हैं हमारे, या फिर आपने बीके शिवानी जी को जाना होगा। तो ये सारे लोग जो हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। राइट नाउ फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। हमारे माइंड की एक बहुत पावरफुल चीज है वो है विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो लैंग्वेज है पिक्चर की लैंग्वेज। यस, पिक्चर की लैंग्वेज। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा ये लैंग्वेज नहीं समझता है। आपका माइंड सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो पिक्चर की लैंग्वेज। अगर आपको मैं पूछता हूं कि पेन की स्पेलिंग क्या है, पेन, तो आप तुरंत बताओगे मुझे। तो आपको लगता है ना कि आप जब पेन का स्पेलिंग बता रहे थे तो आपके माइंड में पहले पेन आ गया, पेन का पिक्चर आ गया। या आपको मैं कहता हूं कि लैपटॉप का स्पेलिंग क्या है, तो आपके सामने पहले लैपटॉप आ गया। यानी जो भी चीज का स्पेलिंग बनाने जाते हो, पहले आपका माइंड पिक्चर निकालता है उस फाइल में से, पहले पिक्चर देखता है, उसका स्पेलिंग बनाता है। यानी हमारा जो माइंड है वो पिक्चर के लैंग्वेज को पहले समझ लेता है। और इसी के लिए आपके गोल्स के रिलेटेड जो पिक्चर्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को देने जरूरी है। और इसी के लिए विजुअलाइजेशन ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पर, या बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज जो है, ये सभी लोग विजुअलाइजेशन शक्ति का ही इस्तेमाल करते हैं, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं, जिस वजह से वो इतने कामयाब और सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, उसका रीप्रोग्राम करके अपने मनपसंद रिजल्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, सो आपको भी विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया जाता है। मैंने भी अपनी लाइफ की यही विजुअलाइजेशन पावर के द्वारा भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैंने भी जब डिसाइड किया था कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके प्रोग्राम लेना चाहता हूँ, तो ये सब चीजें इसी के लिए पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। या फिर वो सोनू सूद हो सकते हैं, मैंने जैसे डिसाइड किया था कि मुझे 100 सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, सो या विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं जिनके साथ जयपुर में मैंने स्टेज शेयर किया था, या फिर अश्नील गोव हो सकते हैं जो शार्क टैंक के अंदर आते हैं, या फिर कॉस्मेटिक यानी कि शुगर कॉस्मेटिक की जो ओनर है विनीता सिंह, उनके साथ में वो हमारे 2-3 प्रोग्राम में आ चुके हैं। या बोट के जो ओनर है अमन गुप्ता जी, वो 3-4 बार प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो अगेन शार्क टैंक में आते हैं। और बोट ये आज दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट कंपनी है एप्पल के बाद में। राइट ये सब कुछ इसी के लिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। या दीपक चोपड़ा जो हमारी इंडस्ट्री के एक लेजेंड है, 100 इन्फ्लुएंसर लोगों में आते हैं जो यूएस से बिलोंग करते हैं। एंड उसके अलावा गौर गोपाल दास हो सकते हैं, या फिर भी सुनील शेट्टी हो सकते हैं, या मे बी अभिषेक बच्चन जी हो सकते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन जी हो सकते हैं, या अनुपम खेर हो सकते हैं जिन्होंने 500 मूवीज बनाई ही है। रॉबर्ट कियोसाकी जो फाइनेंस के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने कितने सारी किताबें लिखी फाइनेंस के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो कॉन्सेप्ट, बिजनेस स्कूल, या ऐसे कितने सारी किताबें लिखी है। उनके साथ में रहने का मौका मिला, उनके साथ में सीखने का मौका मिला। रॉबर्ट एलन जो अगेन रॉबर्ट कियोसाकी के भी कोच हो चुके हैं, रियल एस्टेट के बहुत पावरफुल कोच है ये।
अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है, इनके साथ में हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, या हमसे कुछ लोग सीखते हैं। ये सब कुछ इसी के लिए पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपने सही तरीके से विजुअलाइज किया तो आपके लाइफ में जो चाहिए उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ चीज है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, और वो है मेक अ गोल चार्ट। आपको क्या करना है कि आपने जितने भी गोल्स बनाए हैं, आपने जितने भी टारगेट सेट किए हैं, उसकी पिक्चर ढूंढ निकालिए गूगल के ऊपर, मैगजीन में से, न्यूज़पेपर में से, और उस कट करिए, और उस न्यूज़पेपर के अंदर जो भी फोटोग्राफ्स को आपने कट किया है उसको एक चार्ट पेपर के ऊपर चिपका दीजिए, स्टिक करिए। और वो जो चार्ट पेपर है उसको हम कहते हैं गोल चार्ट या विजन बोर्ड, उसको आपके बेडरूम में लगा दीजिए या तो आपके ऑफिस में लगा दीजिए। और आप जितना हो सके उतनी बार आपके गोल्स जो है वो आपकी नजर के सामने होने चाहिए, बिकॉज जब आपके गोल्स नजर के सामने होंगे तो आपकी एनर्जी उस गोल के ऊपर जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है पिक्चर की लैंग्वेज समझता है, पिक्चर की लैंग्वेज। तो अगर आप पिक्चर माइंड को दोगे तो माइंड क्या करेगा, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा। और इसी के लिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड मेक अ गोल चार्ट, राइट, एक विजन बोर्ड। एंड उसके बाद सिद्धार्थ शेठ एंड कृपा शेठ एक अहमदाबाद में पार्टिसिपेंट रहते हैं। जब उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, गोल चार्ट बनाया, और उन्होंने गोल चार्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का फोटोग्राफ लगाया, ऑस्ट्रेलिया का फोटोग्राफ लगाया, और एडिट करके अपना फोटोग्राफ भी वहां पर चिपका दिया ओपेरा हाउस के सामने। और उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि हम ऑस्ट्रेलिया में सेट हो चुके हैं। एंड यू डोंट बिलीव कि कुछ ही समय के अंदर उनको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली सिद्धार्थ को टोयोटो कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में वहां पर काम करने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया सेट हो गए, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया सेट होने के बाद डिसाइड किया कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर लेना चाहते हैं। उन्होंने घर का फोटोग्राफ लगा विजन बोर्ड के ऊपर, उसे विजुअलाइज करना शुरू किया। एंड कुछ ही समय के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना 4 BHK घर भी लिया। जो घर का फोटोग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 4 BHK का घर उन्होंने लिया हुआ है, उसी घर के सामने का फोटोग्राफ है ये। यानी कि इतनी पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन, आप बिलीव नहीं करोगे। आप गूगल सर्च करोगे या यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे विजुअलाइजेशन, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सेलिब्रिटीज और कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग जो है ये सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और इसी के लिए आपको भी अगर कोई भी चीज को अचीव करना है तो विजुअलाइजेशन इसे फॉलो करना जरूरी है। नाउ सिक्स एंड वेरी पावरफुल टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड राइट डाउन। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको मैं अल्फा डायरी कहता हूं। पहले मैं अल्फा डायरी रखता था, अभी तो मोबाइल फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, तो अभी अल्फा डायरी रखने की जरूरत नहीं है। मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जब आप पहले 5 चीजें फॉलो करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो इंफॉर्मेशन को लीकेज करता है, इंफॉर्मेशन को लीकेज करता है, आइडियाज को लीकेज करता है। और वो लीकेज करता है आपके इंट्यूशन के द्वारा, आपके ड्रीम्स के द्वारा, आपके हंचेस के द्वारा, आपके फ्लैश के द्वारा। ये 4 अलग अलग तरीके हैं सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातचीत करने के। तो जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातचीत कर रहा है अलग अलग तरीके से, तो आपके पास एक अल्फा डायरी होनी चाहिए जहां पर आप लिख सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको आइडिया दी है, वो आप तुरंत लिख सकते हैं। बिकॉज आप क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड तो आपको आइडिया देगा मगर आपको शायद याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। और इसी के लिए आपके पास नोट डाउन करके रखना जरूरी है, और इसी के लिए आपके पास एक अल्फा डायरी होनी चाहिए जहां पर आप सबकॉन्शियस माइंड जो भी आपको बातें बता रहा है, जो भी आपको आइडियाज दे रहा है, जो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो लिखने के लिए आपके पास एक डायरी होना बहुत ही जरूरी है। एंड 7 चीज है, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन, या उसको मैं कहता हूं सेल्फ टॉक। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, सो दिस इज अगेन इज वेरी 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 पावरफुल टेक्निक, दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन। अब ये अफर्मेशन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करने। तो इंस्टॉल करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप लाउडली रीड कर सकते हैं या तो आप उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। दोनों तरीके इफेक्टिव तरीके हैं, आपको जो कंफर्टेबल है वो आप तरीका अपना सकते हैं। या तो आप लाउडली रीड कर सकते हैं या तो आप उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं। अब अफर्मेशन यानी कि सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से बात करें, अपने खुद से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप देखिए पूरे दिन भर के दौरान आप सबसे ज्यादा अगर किसी से बात करते हैं तो आप अपने आप से बात करते हैं। सेल्फ टॉक चलते ही रहता है, हमारा सेल्फ टॉक चलते रहता है, अंदर ही अंदर हम बातें करते रहते हैं। मगर ये जो सेल्फ टॉक है ये ज्यादातर समय पर नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। और इसी के लिए मैं आपको एक आई एम का फॉर्मूला यहां पर दे रहा हूं, आई एम। अब देखिए नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम फेलियर, आई एम अनलकी, आई एम अनवर्दी, आई एम स्टूपिड, आई एम अनलव्ड, आई एम वेरी स्लो, आई एम वेरी स्कार।
ये सब लोग हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। मगर आप जब नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, नेगेटिव चीजों को लेता है और नेगेटिव होना शुरू हो जाता है आपके लाइफ में। मगर इंस्टेंट आप नेगेटिव बोलने से अच्छा है आप उसके सामने पॉजिटिव बोलना शुरू करो। एग्जाम्पल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लकी, आई एम वर्दी, आई एम स्पेशल, आई एम लव्ड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। आप जब पॉजिटिव कहोगे अपने आप से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोगे अपने आप को, तो क्या होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होगा, बिकॉज आप अपने आप के साथ पॉजिटिव बात करें। आप में से कितने लोग जानते हैं द ग्रेट अली बॉक्सर, ग्रेट अली को? वो हमेशा एक ही चीज कहते, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वो अपने आप को हमेशा बेस्ट मानते और चैंपियन मानते, यही अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करते, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, और इसी के लिए वो बेस्ट बने और चैंपियन भी बने। आपको भी अपनी लाइफ में आप जो बनना चाहते हैं, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, वही बातें आपको सेल्फ टॉक के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और जब आप सेल्फ टॉक के रूप में इंस्टॉल करोगे वो सारी बातें हकीकत में रियलिटी में आनी शुरू हो जाएगी। और इसी के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान सौजी भाई ढोलकिया, जो डायमंड किंग है सूरत के, इन्होंने एक चीज सिखाई थी एंड वो थी 5 रूल ऑफ लाइफ। 5 रूल ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि मैं हर दिन सुबह उठने के बाद ये पांच चीजें मैं बोलता हूं। मेरे परिवार वालों को भी मैंने कहा है कि ये 5 चीजें बोलना है। मेरे स्टाफ को भी जब एंट्री करते हैं तो हमारे ऑफिस के गेट पर ही लगा हुआ रहता है, वो पढ़ के ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं। और ये 5 चीजें क्या है, 5 रूल ऑफ लाइफ क्या है? वो अपने आप को हमेशा कहते हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम विनर, टुडे इज माई न्यू डे एंड गॉड इज ऑलवेज विथ मी। आप जब सुबह उठकर अगर सोचिए ये 5 चीजें अगर आप बोलते हैं अपने आप से, बार बार ये बोलते रहोगे, तो क्या होगा, वैसे ही आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, आपके विचार ही है जो आपकी जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं, जिंदगी को क्रिएट कर रहे हैं। इसी के लिए कृष्ण ने भी कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं ही मेरी जिंदगी को क्रिएट कर रहा हूं। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अभी जो आप सोच रहे ये आपके भविष्य में होने वाला है। और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि अभी जो आप जिंदगी जी रहे हैं, इसके पहले पास्ट में आपने इसी जिंदगी के बारे में सोचा था, इसी के लिए आप ये जिंदगी जी रहे। सो थॉट्स बिकम थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर, थॉट्स बिकम थिंग्स। आपके जो विचार है वो हकीकत में बदलते हैं, और इसी के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने आप को देने जरूरी है। तो 5 रूल ऑफ लाइफ, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आप बना सकते हैं और आप अपने आप को दे सकते हैं। नाउ अब 8th पॉइंट जो है मेरा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, एंड वो है फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। आप जितने ज्यादा फॉरगिव करोगे, आपने जो भी लोगों को अपने दिमाग में रखा हुआ है उनको माफ कर दो। जिसने भी आपके साथ चीट किया होगा या कुछ भी किया होगा, उनको माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। और एक्सेप्ट करो, जैसे भी है उनको एक्सेप्ट करो, बिकॉज उसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, राइट? फॉरगिव करना, माफ करना, ये सबसे पहली चीज है। बिकॉज अनफॉरगिवनेस ये आपके अंदर इलनेस को लेकर आती है, बीमारी को लेकर आती है, क्योंकि आपने लोगों को माफ नहीं किया हुआ है। सो कभी भी याद रखिए, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों को माफ करना शुरू करो। रात को सोने से पहले पूरे दिन भर में आप जिससे भी मिले होंगे, जो भी बातचीत हुई रहेगी, अगर किसी ने आपको हर्ट किया होगा, कुछ भी किया होगा आपको, तो उसे दिल से माफ कर दो। ये उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उसके फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। इससे आपका प्रोग्रेस होगा, इससे आप आगे बढ़ोगे। और आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो जैसे भी है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, वैसे एक्सेप्ट करो। क्या आप उसको चेंज करने के लिए मत जाओ, उसको बदलने मत जाओ। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर किसी को चेंज कर सकते हैं तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किसी और को चेंज नहीं कर सकते, राइट? सो अगर आप अपनी लाइफ में फॉरगिव और एक्सेप्टेंस, ये दोनों चीजें अगर करना शुरू किया, सो बिलीव मी, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा, राइट? सो 8 पॉइंट दैट इज कॉल्ड फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस। अब याद रखिए, आप जब ये सारे पॉइंट्स आप जब फॉलो करना शुरू करेंगे, एक्सेप्टेंस एंड
ये जब फॉरगिवनेस करोगे तो ये समझ लो कि ये एक सिस्टम है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वैसे ये सिस्टम है। और ये सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरीके से रन होगा। और ये रन होने के बाद आपके लिए एक चीज करनी जरूरी है, और वो है 9th वन, दैट इज कॉल्ड प्रेयर, यानी प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है कि भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर मांगना नहीं होता है कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, भगवान मुझे ऐसा कर दे, भगवान मुझे वैसा कर दे। नहीं, प्रार्थना का मतलब है कि जो आपको मिला हुआ है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, अपने ईश्वर के आभार प्रकट करना। जो भी आपको मिला हुआ है उसके लिए ग्रेटफुल होना। याद रखिए, हर एक धर्म शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो और समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास है वो अगर ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, तो उसके पास और दिया जाएगा, यानी वो और समृद्ध होगा। मगर जिसके पास है उसके लिए वो कंप्लेन करता है, या जो कमी है उसकी कंप्लेन करता है, तो उसके पास जो है वो भी उसके पास से छीन लिया जाएगा। और इसी के लिए याद रखिए कि आज के बाद आपके ईश्वर ने, आपके प्रभु ने, या नेचर, अल्लाह, जीसस, जो भी कहे नाम उसको, किसी ने भी, किसी भी मानती शक्ति में उसने आपको जो जो चीज दी है उसके लिए आपको दिल से ग्रेटफुल होना, दिल से थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। दिल से ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। जब आप दिल से ग्रेटफुल होते, थैंकफुल होते, उसका आभार प्रकट करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो कमी है वो भरना शुरू कर देता है। आपकी लाइफ में जो इनबैलेंस है वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। और इसी के लिए आज से आप डेली रात को सोने से पहले आप अपना ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना शुरू करो कि आज पूरे दिन भर में आपको कितनी सारी चीजें अच्छी आपके लाइफ में हुई है, जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी है, ग्रेटफुल है, थैंकफुल है आप। तो उसका लिस्ट बनाना शुरू करो कि कौन सी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल है। सुबह उठते हैं तो आप ग्रेटफुल होना शुरू करो कि आज का दिन मुझे दिया है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू करो। आप जब हर एक चीज के लिए, जो जो चीजें आपको मिल रही है उन सभी चीजों के लिए आप जितनी ज्यादा ग्रेटफुल होगे, जितनी ज्यादा थैंकफुल होंगे, जितना पॉजिटिव प्रेयर करोगे, उतना आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा हर एक गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिव इमोशंस है, पॉजिटिव भाव है। और ग्रैटिट्यूड इससे बेहतर कोई भी पॉजिटिव इमोशन नहीं है। सबसे बेस्ट इमोशन अगर कोई है तो है ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। ये सबसे बेस्ट इमोशन है। और इसी के लिए आप ये प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लेकर आइए, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, राइट। एंड नाउ, जैसे प्रेयर एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, अगर आपके कंप्यूटर को या फैन को या एसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे ही आपके प्रोग्रामिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये प्रेयर की जरूरत होती है, राइट। और वैसे ही प्रेयर के साथ साथ में आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वो है फेथ एंड पेशेंस। क्या है? फेथ एंड पेशेंस। आपने सब कुछ चीजें फॉलो किए, मगर अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो क्या होगा? अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो क्या होगा? वो प्रोग्राम जो किया था आपने वो फेल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आपने बीज जमीन पर डाला, बोया, मगर आप हर दिन आप उस जमीन में से उस बीज को निकाल कर देखोगे कि बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो कभी बड़ा होगा ही नहीं, वो मर जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा कि अगर आपने बीज बोया है तो आपका काम है उसे पानी देना, सनलाइट देना, सब कुछ चीज देना। वो अपने आप ग्रो होने वाला है, वो समय लेगा ग्रो होने के लिए, उसके हिसाब से ग्रो होगा वो। वैसे ही पेशेंस और फेथ रखना जरूरी है आपको। आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जो चीजें आपने इंस्टॉल की है, जो जो आपने गोल्स दिए हैं, जो भी आपने विजुअलाइज किया है, उसको हकीकत में बदलने के लिए उसको समय चाहिए। और उसके लिए आपको फेथ भी रखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आपने वो साईं बाबा के मंदिर में गए होंगे या शिरडी गए होंगे, तो वहां पर लिखा होता है श्रद्धा एंड सबूरी। ये सुनो, श्रद्धा एंड सबूरी। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी और सबूरी भी रखनी पड़ेगी, यानी फेथ एंड पेशेंस दोनों रखना जरूरी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये फेथ एंड पेशेंस रखना जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर 10 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्योंकि अगर फेथ एंड पेशेंस नहीं है तो डाउट का काम करेगा, और डाउट ये वायरस का काम करता है।
जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस गया तो क्या होगा, पूरे सिस्टम को हैंग कर देगा। वैसे ही हमारे अंदर अगर कोई भी प्रकार का डाउट गया, नेगेटिव विचार गया, तो अगेन वो वायरस का काम करेगा और पूरे सिस्टम को हैंग करना शुरू करेगा, राइट। और इसी के लिए ये 10 स्टेप्स आपने यहाँ पर देखे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे आपके पास रहेगा, अगर आपने लिखा होगा तो बहुत ही अच्छा है। मगर ये 10 स्टेप्स है जो आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज के लिए, वो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है या रिटर्न्स देता है। अगर आपने 1 लाख रुपया एफडी करके रखा तो 8 साल के बाद शायद आपको डबल होगा। मगर यही 1 लाख रुपया आपने सीखने के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट किया, तो शायद ये आपको 8 साल के अंदर उसे कई गुना मल्टीप्लीकेशन से पैसा देगा। क्योंकि लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ है। लर्निंग में से एल निकाल दो तो क्या बचेगा, अर्निंग बचेगा, राइट। और इसी के लिए अगर आप लर्निंग को बढ़ाते जाओगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, राइट, ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। इसी के लिए अमिताभ बच्चन जी हमेशा कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। ये सुनो, सीखना बंद तो जीतना बंद। आपकी उम्र कोई भी हो, हर एज पर हमें हर दिन नई नई कोई चीजें सीखना जरूरी है। और इसी के लिए याद रखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक फॉरेस्ट का पिक्चर है, एक जंगल का पिक्चर है, और यहां पर जो देख रहे हैं एक गार्डन है। अब ये जो फॉरेस्ट है, जो गार्डन है और फॉरेस्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बिकॉज जंगल जो है ना, इसको बनाने के लिए मेहनत नहीं लगा हुआ है, इसको क्रिएट करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगा, ये बाई चांस से बना हुआ है। मगर जो गार्डन है ये बाई चॉइस से बना हुआ है, ये बाई चॉइस है। गार्डन को क्रिएट करना ये बाई चॉइस है, ये चॉइस से क्रिएट किया हुआ है, इसी के लिए ऐसा डिजाइन किया हुआ है। और वैसे हमारी लाइफ, शायद हमारी लाइफ लाइफ में हम इस संसार में आए बाई चांस के द्वारा, मगर हम जीने वाले हैं अभी आने वाली जिंदगी है, वो बाई चॉइस के द्वारा जीना है। और अगर आप बाई चॉइस के द्वारा जीना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आज के बाद आप चांस वाली जिंदगी से चॉइस की तरफ जाइए। बिकॉज छोटे घर में रहना इज अ चांस, मगर अपने ड्रीम होम में जाना दिस इज अ चॉइस। या फिर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना इज अ चांस, मगर अपनी खुद की कार से ट्रैवल करना इज अ चॉइस। या मे बी अनहैप्पी रहना, अनहेल्दी रहना, अनसक्सेसफुल बनना एक चांस है, मगर हेल्दी बनना या एक सक्सेसफुल इंसान बनना ये एक बाय चॉइस है। या फिर अनहेल्दी रहना, बीमार रहना बाय चांस है, मगर हेल्दी रहना ये बाय चॉइस है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना चाहते हैं, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, या आपके अंदर के डर को निकालना चाहते हैं, क्वालिटी स्लीप बढ़ाना चाहते हैं, या आपके जो डिजायर्ड टाइम पर आप सुबह उठना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पूरे दिन भर बेहतर करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने अंदर अच्छी आदतें इंस्टॉल करना चाहते हैं, बुरी आदतों को निकालना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूं कि मेरा एक अपकमिंग प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है एक मुलाकात अपने आप के साथ। यस, एक मुलाकात अपने आप के साथ। आपने शायद बहुत बार अलग अलग इंसान से मुलाकात की, अलग अलग लोगों से मुलाकात की, मगर शायद अपने आप के साथ कभी मुलाकात नहीं की। तो ये आपके पास मौका दिया जा रहा है एक मुलाकात अपने आप के साथ करने का। दैट इज कॉल्ड इनर जर्नी। एक ऐसा प्रोग्राम जो इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोग्राम है, एक मेडिटेशन के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जहां पर आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और अपने लाइफ में जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पहुंच सकते हैं। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि इस प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहते हैं, सो आप जरूर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको चैट बॉक्स में दिए जाएंगे, या तो फिर ये जो द चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले ईच एंड एवरी वन, मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन कि आपने इतने पेशेंसली मुझे सुना, इतनी एक्टिवली आप चैट बॉक्स के अंदर जाकर टाइप कर रहे थे, इतने इन्वॉल्व होकर इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे। मैं आपको देख नहीं पा रहा है, मगर आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप कितने एनर्जी के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक सेंटेंस में मुझे बताइए कि इस सेशन को जो आपने अटेंड किया हुआ है वो कैसा लगा आपको सेशन, मुझे एक सेंटेंस में बताइए ईच एंड एवरीवन। जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा था। ओके, नाइस, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, ओके, फैंटास्टिक, अमेजिंग, टू गुड, ओके, नाइस,
wonderful, fantastic, excellent, great, excellent, one of the best program. Okay, productive. Okay, thank you so much, each and everyone. Thank you so much. Super, value adding, excellent. Thank you so much. Thank you so much. Unbelievable event. Okay, thank you so much. Because मेरे पास टाइम बहुत कम था और ये शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा मुझे आपको वैल्यू ऐड करना था, तो मेरा स्पीड भी थोड़ा ज्यादा था बिकॉज टाइम कम ही था और मुझे ज्यादा आपको डिलीवर करना था। 10 पॉइंट्स मुझे कवर करने थे। वैसे 10 पॉइंट्स को कवर करने के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे का कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर 1.25 घंटे में देने की कोशिश की, राइट? सो थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, जो भी लोग मुझे अटेंड कर रहे हैं। आई एम रियली अप्रिशिएट फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। ओवर टू अशिता जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Mahendra sir. That was indeed an excellent. Excellent is also a very less word, but indeed an excellent session. I request the participants to write their questions if they have any in the Q&A box. राइट, अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो आई कैन गाइड यू। ओके, 10 स्टेप्स आपको मैं शेयर करूं। ओके ओके, सो यहाँ पर मैं आपको वापस स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट, या तो उसका फोटो निकाल सकते हैं। ये 10 स्टेप्स है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो टेक अ पिक्चर और मे बी स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे लगता है किसी के क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। You have so elaborately explained everything that they don't have any questions. So anyway, thank you so much. Thank you so much. Thank you Yes. so much, sir. I request Sagar Mehta. We have one question. एक मुलाकात के बारे में जानना है। ओके, सो एक मुलाकात के बाद जाना है तो आपको नंबर चैट बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। आप जरूर डिटेल्स के लिए वो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, आपको चैट। I request Sagar to give a formal vote of thanks. Over to you, Sagar. Thank you. Good evening, everyone. It has been such an honor to be part of this wonderful SAS session. On behalf of CTC, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Mr. Mahendra Devlekar ji, who spared time from his busy schedule to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and I'm very sure that this will be very much helpful for every one of us. So thank you very much. And also, I'd like to thank all the participants who are present here. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.